Next is women movement. The women's movement in India is a rich and vibrant movement taking different form of different part of the country over the centuries. भारत में बहुत सालों से ही जो वुमेन मूवमेंट है वो एक्टिवेट है. अपने देश में भी वुमेन मूवमेंट ने काफ़ी काम किया है. India is a country of contradictions. At the heart of these contradictions are Indian women. For a while, it is true too that they are among the most liberal, the most articulate, and perhaps in the world most free at the same time. It is equally true that some of them lead a very miserable life of utter disrespect and exploitation of various types. वुमेन जो है वो पूरा हार्ट है, पूरे वुमेन जो पूरे देश है उसका हार्ट मानी जाती है. ये भी सत्य है कि वो लिबरल होनी चाहिए और कम से कम फ्री होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसी समय पर हम देखते हैं कि कई जगह पर वुमेन्स की स्थिति बहुत मिजरेबल होती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिसरेस्पेक्ट होती है. During last 5 years that India had a woman president, the country saw increasing incident of violence and discrimination against women. लगभग 5 साल पीछे जाए तो हमारी वुमेन प्रेसिडेंट भी थी, फिर भी हमने वुमेन वायलेंस देखे, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. A casual visitor to any Indian city, for example Mumbai, will see hundreds of women, young and old, working in all kind of profession, doctor, nurse, teacher, engineer, scientist. Yet newspaper in India are full of stories of violence incident against women such as rape, even teasing, sexual harassment and sometimes even murder. बॉम्बे का एग्जाम्पल दिया गया कि इतना डेवलप्ड सिटी है, वुमेन्स हर फील्ड में काम कर रही है, फिर भी न्यूज़पेपर फुल ऑफ होते हैं किसी न किसी वायलेंस के लिए जो कि वुमेन्स के ऊपर किया जाता है. To have a woman in the highest office of state and simultaneously encounter extreme violence against women are merely the two end of the scale. वुमेंस के हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वुमेंस का डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस फिर भी इंडिया में अवेलेबल है. One of the first issue to receive countrywide attention from women group was violence against women, especially in the form of rape, acid attack, and what came to be known as India as a dowry death, the killing of young married women for dowry brought by them at time of marriage. बहुत सारे इशू हैं जो पूरे कंट्री में हमने देखने को मिले हैं वुमेन ग्रुप के ऊपर जो वायलेंस होता है, जैसे कि अटैक हो जाए, एसिड अटैक हो जाए, या फिर उन डाउरी की डिमांड की वजह से वुमेन को मार दिया जाए. तो दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर वुमेन. मोस्ट प्रोटेस्ट वर डायरेक्टेड द स्टेट लेवल. तो ये ज़रूरत है कि वुमेन प्रोटेस्ट होने चाहिए स्टेट लेवल पर, क्योंकि वुमेन वर एबल टू मोबिलाइज सपोर्ट. द स्टेट रिस्पॉन्स सीम टू बी पॉजिटिव बाई चेंजिंग द लॉ ऑन रेप एंड डाउरी, मेकिंग बोथ मोर स्ट्रिक्ट होना चाहिए. चाहे वुमेंस के ऊपर कोई भी वायलेशन हो, उसके अगेंस्ट जो केस है, जो लॉ है, वो आज के लॉ के हिसाब से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए. Perhaps the most significant development for women in the last few decades has been the introduction of 33 reservation for them in local and village level education election. सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो वुमेन का हुआ पिछले फ्यू डिकेड से वो था कि उनको 33% रिजर्वेशन लोकल और विलेज लेवल पे दिया गया. एट अ प्रेजेंट इनको स्टेट और सेंट्रल पे भी वुमेन को रिजर्वेशन पास कर दिया गया है. In the early days when the move was introduced, there was considerably skepticism. How will women cope? Are they equipped to be leader? Will this mean any real change or merely mean that the men will take a back seat and use women as a front to implement what they want? While all these problems still remain in a greater or lesser degree, what is also true is that the more and more women have shown that once they have power, they are able to use it to benefit of society in general and women in particular. हम ये देख सकते हैं कि कुछ ही दिन की जो वुमेंस मूवमेंट है या वुमेंस पार्टिसिपेशन है या वुमेंस लीडर हैं, क्या वो वाकई में समाज में बदलाव ला सकती हैं. साथ साथ अब वुमेन को फ्रंट में आके अपना रोल प्ले करना चाहिए और कर भी रही हैं. और साथ साथ ये भी देखना है कि जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है. कहीं पर वुमेंस एक्सप्लॉयटेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है और कहीं पर कम हो गया है. सच्चाई ये है कि वुमेंस को अब खुद अपनी पावर को दिखाना चाहिए. उन्हें ये शो करना चाहिए कि वो उनके अंदर एबिलिटी है और उस एबिलिटी को वो यूज़ कर सकती हैं और सोसाइटी को बेनिफिट भी दे सकती हैं
और सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी भी बना सकती हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ, आप उसे पूरा कर लीजिए।